towards the next basic topic, elements, compounds and mixtures. These subtopics or basic topics are very important. For the next one, elements, compounds and mixtures. First of all, what are elements? If we discuss about the element, what do you mean by the term of the element? The extracted part of anything. आप किसी भी चीज में से किसी चीज को निकालें, that is element. But in terms of chemistry, what do you mean by the elements? The first point, made up of same type of atoms. Any elements are made up of the similar type of the atoms. Okay. The smallest part of matter. Okay. Matter का smallest part होगा. Next one. It is a pure substance. What is it? Pure substance. And cannot be break down or broken by chemical means. आप ये सपोज करके बैठे कि केमिकल मीन्स दैट मीन केमिकल रिएक्शन, तो कभी भी उससे वो तोड़ा नहीं जा सकता. हाँ, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, and the number of elements, but each element is made up of the same type of atoms. The atoms of carbon is totally different from the atom of sodium. Atom of oxygen is totally different from the atom of, or what? Give me two example of the elements except these. Chlorine, bromine, iron, chromium, cobalt, zinc. सही, ये सारे के सारे क्या हैं? Different types of atoms. But the smallest part of matter, what is this smallest part of matter? Matter का सबसे smallest part जो केमिस्ट्री के टर्म के अंदर आता है, that is element. यानी अब अगर मैं कंपाउंड लूं, कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल लूं, और लेकिन उसे मैं ब्रेक करूं, ब्रेक करने के बाद आपको जो सब्सटेंस मिलता है वो क्या है? एलिमेंट. अब आप एलिमेंट को मजीद अगर ब्रेक करना चाहें, हाफ a compound sodium chloride is very common. If you want to break it, the two components will be obtained, sodium and chlorine. But if you want to break the sodium, it's not possible. It is made up of the similar type of atoms. With the help of chemical reaction, we cannot break sodium metal. सोडियम मेटल को तोड़ा ही नहीं जा सकता. सोडियम मेटल को केमिकल रिएक्शन के जरिए एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या कर देते हैं? कन्वर्ट. That's why pure substance and cannot be broken by chemical means. आप उसको केमिकल रिएक्शन से इन्वॉल्वमेंट के जरिए ब्रेक नहीं कर सकते. That is the introduction of the elements. Now, elements discovered by different type of scientists, but first scientist, the name is John Dalton. John Dalton discovered different type of elements, at least 20 elements. उनकी listing, उनके names, उनके symbols, all of these type of the categories fulfilled by the elements, fulfilled by the John Dalton. तो ये आपके पास कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी, नोट डाउन कीजिए. जी,
जी बेटे ना the name of elements are of two types. How many categories? The name of an element. The name of element are of two types. English names and the second one. Scientist के ऊपर बोलते हैं. Scientist के name. Greek names. So किसी जमाने में हम Latin names के नाम से जानते हैं. For example, sodium English name is sodium. लेकिन अगर मैं इसका ग्रीक नेम आपको कहूं तो उसका ग्रीक नेम क्या होगा? नेट्रियम. और हमने सिंबल भी इसका इसी से निकाला है. नंबर 2 कार्बन. कार्बन सिर्फ अपने इंग्लिश नेम पे चलता है. सल्फर, सल्फर का अपना सिर्फ इंग्लिश नेम है. पोटेशियम, इंग्लिश नेम पोटेशियम है, लेकिन इसका ग्रीक नेम क्या बनता है आपके पास? बहुत सिंपल, कैरियम. इसका मतलब एलिमेंट्स के नेम्स दो तरह के, इंग्लिश नेम्स एंड द ग्रीक नेम्स. कार्बन, सल्फर, क्लोरीन, फ्लोरीन, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, हीलियम, they all are the English names. But lead, the symbol is lead. इंग्लिश नेम लिखा, लेकिन इसका ग्रीक नेम हम क्या लेते हैं? प्लम्बम. सिमिलरली सिल्वर, आपने नाम सुना है, लेकिन हम इसका ग्रीक नेम सिंबल यूज करते हैं, दैट इज द नेम इज अर्जेंटम. सिमिलरली मर्करी, द नेम ऑफ इंग्लिश इज मर्करी, बट द ग्रीक नेम इज द हाइड्रोगाइरम, और सिंबल यूज करते हैं हम Hg. दैट मीन एलिमेंट्स के नेम दो तरह से डिसाइड किए गए. एक इनके इंग्लिश नेम, मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स आते हैं इंग्लिश नेम, लेकिन जब कभी हमें मुश्किल होती है और एक से ज्यादा लेटर से उनके सिंबल्स जो है वो रिप्रेजेंटेशन मेथड आना शुरू हो जाते हैं, देन वी कंटिन्यू इन फॉर्म ऑफ द ग्रीक. इन ग्रीक नेम के साथ साथ आपको एक चीज और बता, तो हम सिंबल्स यूज करते हैं फॉर द शॉर्ट वे रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट. दैट मीन एलिमेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय देयर सिंबल. हम बार बार पूरा पूरा नाम नहीं लिखते. आयरन कहते हैं आयरन है, लेकिन सिंबल क्या लिखते हैं उसका? Fe. तो क्या सिंबल्स भी आपके पास दो तरह के? एक कहलाता है वन लेटर, जो किस पे कंसिस्ट करेगा? वन लेटर, ओनली वन लेटर. कार्बन C, सल्फर S, और इसी तरह ऑक्सीजन O, नाइट्रोजन N. और दूसरा क्या कहलाता है? टू लेटर. वन लेटर मीन्स जो एक ही लेटर पे कंसिस्टिंग है, कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन. इज इट क्लियर? एंड टू लेटर मीन्स क्लोरीन, नियॉन, सोडियम. बट सोडियम के लिए हम क्या यूज करते हैं? लिखूंगी यहां पर, लेकिन उसे मार्क भी करूंगी. Na, ग्रीक नेम से लिया हमने. सही. और इसी के साथ साथ के पास यहाँ पर मजीद नेम सिलिकॉन. तो क्या टू लेटर्स, ये टू लेटर्स क्यों लिए? कार्बन, क्लोरीन. अगर मैं क्लोरीन के लिए भी कैपिटल C यूज करूं तो देयर इज नो एनी डिफरेंस इन बिटवीन द कार्बन एंड द क्लोरीन. हाउ वी डिस्टिंग्विश where is carbon and where is chlorine atom is responsible for the chemical reaction? For this purpose we use the second letter, but always and always first letter in the uppercase, that means in capital letters. And for the two letters, the first one is capital and other one is the small. ये सारी वो बेसिक चीजें हैं जो हमारी नॉलेज में होना चाहिए. अब यहाँ पर एलिमेंट के नेम्स हमने पढ़े इंग्लिश एंड ग्रीक. नंबर ऑफ लिस्ट आ सकती है, पूरा पीरियोडिक टेबल इससे भरा पड़ा है, लेकिन आपके पास आपको सिर्फ ये डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स के तौर पे याद रखना है. नेम्स आर ऑफ टू टाइप, इंग्लिश एंड ग्रीक. लेटर्स और सिंबल्स आर ऑफ टू टाइप, सिंगल और डबल. दैट मीन वन लेटर एंड टू लेटर्स. ये थोड़ा सा डिफरेंस है जो आपको याद दिलाना था. नोट डाउन कीजिए, क्विकली कीजिए.
Now, the symbols of the Greek names. For sodium Na, or lead Tb, for silver Ag, for potassium K, for mercury Hg, for gold Au. They all are the Greek names with the help of their Greek symbols. ये आपको इसलिए याद दिलाया कि अगर कहीं पर ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन आपके पास किसी भी तरह से कोई भी सिंबल नजर आए, बताइए ये क्या है? व्हाट इज दिस? कॉपर. लेकिन इसका नेम क्या बनेगा? क्यूप्रम. लेकिन हम इसे इंग्लिश नेम से काटते हैं, लेकिन इसका सिंबल क्या यूज करते हैं? Cu. क्यूप्रम से आया. व्हाट इज दिस? Iron. But the name of the symbol is ferrum. The name of the symbol is ferrum. They all are the Greek names with their proper symbols. अच्छा ये बताइए, what do you know about the atom? What is an atom? What is an atom? Smallest particle of an element. Okay. Good. But atom word derived from the word atomos, which means indivisible. The old concept about an atom is that it is indivisible. Indivisible means it cannot be break down into components. Indivisible. It is divisible. How? The atom consists of electron, proton, and neutron. Atom consists of subatomic particles, electron, proton, and neutron. Extremely small size. Atom has extremely small size. For example, a common pen. If we arrange number of atoms on a common pen, 4 into 10 to the power 23 atoms will be arranged. That is a huge quantity of number of atoms. ये जो extremely small लिखा है, इसे समझाने के लिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया और ये एक रियल एग्जाम्पल कि एटम के स्ट्रक्चर को इतना छोटा जो आप हमारी इमेजिनेशन से भी कम है. कि अगर आपके पास एक कॉमन पेन है और उसके हेड पर आप नंबर ऑफ एटम्स को अरेंज करें तो अप्रोक्सीमेटली 10 to the power 23 एटम्स उसके ऊपर अरेंज हो जाएंगे. मिलियंस ऑफ बिलियंस एटम्स कैन बी अरेंज्ड. इतना स्मॉलर है. तो ओल्ड कॉन्सेप्ट ये कहता था इनडिविजिबल है, इसको मजीद ब्रेक नहीं किया जा सकता. मॉडर्न कॉन्सेप्ट इंडिकेट्स दैट एटम इज डिविजिबल. हाउ? इट कंटेन्स द सबatomic particles, electron, which are revolving, proton and neutron in the central part of the atom, which is known as nucleus. If you remember, the atomic structure can be represented in a orbital shape, in a circular shape, and these circular shapes are known as shells, and the central part is known as the nucleus. In shells, the electrons are revolving, but in nucleus, the two subatomic particles are present, which are called as protons and neutrons. What do you mean by the atom? थोड़ी सी बात पता थी, हमने उसको मजीद कंप्लीट किया, लेकिन इस बात को मैंने एलिमेंट के साथ क्यों कंबाइन किया? ये जो मैंने आपसे कहा कि एलिमेंट इज मेड अप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स. दैट मीन एलिमेंट आइडेंटिकल एटम से अगर बना है, किससे बना है बेटा? आइडेंटिकल एटम्स.
तो वहां पर वो आइडेंटिकल थिंग आखिर है क्या जिसकी वजह से हम एटम्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं ये सेम है और ये क्या है डिफरेंट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज इट proton numbers. How many number of protons are present? The number of protons in carbon are totally different from the number of protons in oxygen. The number of protons in the nitrogen is totally different from the number of protons of lead. तो proton number अगर same है तो identical atoms हैं और identical atoms है that means it is present in a element in an element. इसका मतलब आपके पास हर एलिमेंट की आइडेंटिकल शेप इन फॉर्म ऑफ प्रोटॉन नंबर है. प्रोटॉन नंबर इज सेम, एलिमेंट इज मेड अप ऑफ द सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स. प्रोटॉन नंबर इज डिफरेंट, एलिमेंट इज not containing the similar type of elements, similar type of atoms. That means it is containing different number of atoms but having the same number of protons. ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, never ever. एलिमेंट एक हो और उसके नंबर ऑफ एटम्स में प्रोटॉन नंबर डिफरेंट हो, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता. तो ये बात आपको इसलिए समझाई एटम से रिलेटेड ताकि आपको समझ में आ सके कि आखिर एलिमेंट कौन से एटम से मिलकर बने. तो उन एटम्स की जो है वो सिमिलैरिटी किस पर डिपेंडेंट है, प्रोटॉन नंबर. और प्रोटॉन नंबर क्या होते हैं, बहुत सिंपल, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम. इज इट क्लियर? नो डाउट. जी बेटे डन. Now, atom may be present in two types of categories. एटम आपके पास कुछ इस तरह से मौजूद हो सकता है. अगर वो न्यूट्रल है, अगर वो क्या है, न्यूट्रल है, तो उसका एलिमेंट ऐसे लिखा जाएगा. फॉर एग्जाम्पल सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, ऑक्सीजन. न्यूट्रल. How we identified it as a neutral? No any charge is present. But if atom is charged, that means there is two type of the charges are present. Atom may be charged. If positively charged, then it is known as cation. और आप charged atom को एक और नाम भी दे सकते हैं, ion. Charged atom may be known as the ion. Charged atom means there may be of two types of the charges, positively and negatively.
If positive charge is present, it is known as the cation. If negative charge is present, it is known as the anion. How the positive charge appears on any atom? Positive charge means by loss of electron. By loss of electron, what happens? Carbon. The proton number of carbon is 6. The proton number of carbon is 6. सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई कीजिए, कार्बन इस वक्त न्यूट्रल है या फिर चार्ज्ड है? न्यूट्रल है. सोडियम 11, न्यूट्रल और चार्ज्ड? न्यूट्रल. But when Na positive is present, what happens? Na positive means it loses an electron. Na positive plus 1 means 1 electron has been lost by the sodium. If Ca plus 2, what do you mean by this? Calcium has lost 2 electrons. इसका मतलब बड़ी आसानी से हम प्रेडिक्ट कर लेते हैं. और कैसे प्रेडिक्ट कर लेते हैं? With the help of the present charges. हमें कैसे पता चलेगा कौन से एलिमेंट्स जो है वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन में जा सकते हैं और कौन से एलिमेंट्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में जा सकते हैं? मेटल्स. What do you mean by the metals? Metals क्या होता है? 2 basic properties. Number 1, best conductors. Number 2, salt भी hard and strong है. Salt. Metals. Malleable and ductile. 2 basic properties. Other properties में आ सकता है कि metals are hard and solid. लेकिन 2 basic properties of metals are conductors. They can conduct heat and electricity. Number 2, malleable and ductile. They can be drawn into the wires and in form of sheets. There are number of metals are present in the periodic table. In the periodic table, some of them copper, sodium, calcium, magnesium, iron, nickel, zinc, aluminium. ये सब क्या है? मेटल्स है. इसका मतलब ज्यादातर कौन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन में जाता है? मेटल्स. ज्यादातर कौन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन में जाता है? मेटल्स. आखिर ये एलिमेंट को प्रॉब्लम क्या होती है? वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्यों जाना चाहता है? Stable to complete their octet and behaving like noble gases. They want to behave like the noble gases. वो किसके जैसा बनना चाहते हैं? नोबल गैसेस. नोबल गैसेस की खास बात क्या है? उन्हें इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन की जरूरत नहीं. क्यों नहीं है? क्योंकि उनके नंबर ऑफ शेल्स जो मैंने अभी ड्रॉ किया था वो क्या है? कंप्लीट. तो क्या हर एक इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करना चाहता है और इस चक्कर में वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बनाता है और उस पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को अक्वायर करने की वजह ये है कि they want to behave like noble gases. And what are the noble gases? Helium, neon, argon, krypton, xenon. सही. आगे बढ़ते हैं. एनाइन. एनाइन कैसे बनता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से. हम इसे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? Cl माइनस. How many electron gain? 1. Chlorine gain 1 electron. O minus 2. How many electron? 2. N minus 3. How many electron? 3. और जितने भी आपके पास नॉन मेटल्स हैं. कौन बेटा? नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स कहाँ है? अगर मैं आपके सामने रफली पीरियोडिक टेबल बनाऊं तो ये आपके पास पीरियोडिक टेबल है. सही है. इससे ज्यादा रफ नहीं बना सकते. यहां मौजूद है मेटल्स, यहां मौजूद है ट्रांजिशन मेटल्स और यहां मौजूद है नॉन मेटल्स. इसका मतलब when we move from बताइए लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल. जब आप पीरियोडिक टेबल आपके सामने हो तो आप जब लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो लेफ्ट साइड पर आपके पास कौन मौजूद है? मेटल्स. और राइट साइड पे आपके पास कौन मौजूद है? नॉन मेटल्स. और उन दोनों के दरमियान में कौन मौजूद है? ट्रांजिशन मेटल्स.
Metals, they want to lose their electron. Non-metals, they want to gain electron. And what about the transition metals? They have the variable valency. कभी एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं, कभी दो इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं, लेकिन ये वेरिएबल है. कलर्ड सॉल्ट बनाते हैं. क्या बनाते हैं? कलर्ड सॉल्ट. इनकी अपीयरेंस क्या होती है? डिफरेंट होती है. हैवी मेटल्स में भी आते हैं और हैवी मेटल्स के साथ साथ ट्रांजिशन बिहेवियर, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह, एक शेल से दूसरी शेल. इंटरनली ट्रांजिशन पॉसिबल है इन बिटवीन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो आपके पास जितने मेटल्स थे वो क्या बनाएंगे? कैटाइन. और जितने नॉन मेटल्स थे वो क्या बनाएंगे? एनाइन. देन व्हाट अबाउट द ट्रांजिशन मेटल? ये भी बनाते हैं कैटाइन. वो कभी भी आपके पास एनाइन नहीं बना. तो आपके पास ये कंप्लीट बात है. इसको जब तक नोट डाउन कीजिए बेटा क्विकली. आप सब प्रेजेंस भी रहेगा. महक और हाँ नहीं हाँ जी डन. अब हमें नंबर ऑफ कैटाइंस और एनाइंस अगर याद नहीं है, लेकिन चलिए हम ट्राई करते हैं. हाउ वी प्रेडिक्ट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एनी कंपाउंड. इफ द कैटाइन इज +3 of iron and anion is O-2 for the oxygen, what will be the combination of this type of the ions? हम इसका केमिकल फॉर्मूला कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं? ये बात याद रखें. व्हाट डू यू मीन बाय द केमिकल फॉर्मूला? When two or more than two elements combine together, it forms a compound. कंपाउंड पे जाने से पहले एटलीस्ट आपको ये जरूर पता होना चाहिए एलिमेंट क्या था, एटम क्या था, एटम के चार्जेस क्या होते हैं. एंड व्हेन दीज एलिमेंट्स, चार्ज्ड एलिमेंट्स और एटॉमिक जो है वो एलिमेंट्स व्हेन कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ कंपाउंड इन फॉर्म ऑफ देयर आयंस, देन व्हाट हैपेंस? व्हाट हैपेंस? Fe+3 O-2. अगर मैं इसका फॉर्मूला प्रेडिक्ट करूं तो ये अपनी जगह चेंज करते हैं. चार्जेस नहीं, सिर्फ और सिर्फ नंबर्स अपनी जगह क्या करेंगे? चेंज करेंगे. अगर ये जगह में चेंज करूं तो इसका मतलब Fe के साथ क्या आना चाहिए? 2. और ऑक्सीजन के साथ क्या आना चाहिए? 3. द फॉर्मूला विल बी iron oxide and this is commonly known as the rust. This is commonly known as the rust. If this oxygen is combined with the sodium, sodium has the +1 and oxygen is the -2. What will be the formula? तो जब प्लस है दैट मीन 1 है, और 1 जब शिफ्ट होता है तो उसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है. देन फॉर्मूला बिकम्स Na2. The name of the compound is sodium oxide. आगे बढ़ते हैं. आप देखिएगा मैंने एनाइन कॉमन रखा हुआ है, लेकिन मैं सिर्फ अभी कैटाइन चेंज करूंगी ताकि आप नंबर ऑफ फॉर्मूलाज की प्रैक्टिस कर सकें और आपको बात भी समझ में. ये कंबाइन कैसे हुए, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हो रहा है, इसकी कहानी आहिस्ता आहिस्ता ही आएगी, एकदम से नहीं आ सकती है. ये बात हमेशा याद रखें. If the magnesium is +2 and oxygen is -2, then equal and opposite charges are present on magnesium and oxygen. What happens? They will be cancel out to each other. +2 -2 cancel out each other. Then MgO. Formula is magnesium oxide.
इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन आप ट्राई करेंगे. इफ Al is +3 and oxygen is -2, what is the formula? Al2O3. बात समझ में आती है? कोई प्रॉब्लम? कॉपी करें क्विकली कंप्लीटली कॉपी कीजिएगा. उसके बाद मैंने एक टेबुलर फॉर्म आपके सामने लिखनी है ताकि आप उसे समझ सकें. List of cations. H plus, Na plus, K plus, NH4 plus. सबके ऊपर कौन सा चार्ज है? प्लस. अगर मैं आपसे कहूं इन कैटाइंस पर चार्ज क्या है तो आपने बड़ी आसानी से पहचाना. कंटेन्स +1 चार्ज. नेक्स्ट वन, कैल्शियम +2, मैग्नीशियम +2. नेक्स्ट कॉपर +2, आयरन +2. इन सबके ऊपर चार्ज कौन सा है? +2. नेक्स्ट एल्यूमिनियम +3. मैंने सारे जो कैटाइंस लिखे हैं इसमें सिर्फ मुझे एक बात का जवाब चाहिए. The cation which is not consisting of only one atom, where it is present? NH4. NH4 plus. कैटाइन अगर आप गौर करें तो सब सिंगल एटम, ओनली वन एटम, एक्सेप्ट द अमोनिया. हम इसको अमोनिया का डेरिवेटिव कहते हैं लेकिन इसका नेम क्या है? अमोनियम. हम इसे क्या कहते हैं? अमोनियम. तो ये बात मैंने आपको क्यों कही? ये बात मैंने आपको इसलिए कही ताकि आप पहचान सकें कैटाइन भी मोनोएटॉमिक, डाइएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक हो सकते हैं. लेकिन कैटाइन में कैटेगरी जरा कम है. जब मैं आपके सामने एनाइन की लिस्ट लिखूंगी तो आपको ये बात क्लियर होगी. आयरन +3. अब आप देखें आयरन +2 में भी है और आयरन +3. सिमिलरली कॉपर, अगर मैं यहाँ कॉपर इंसर्ट करूं तो कॉपर कहाँ लिखा मैंने? +1. कॉपर +1 में भी है और कॉपर कहाँ है? +2. ट्रांजिशन बिहेवियर, +1 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है. सिमिलरली अगर मैं आपके सामने यहाँ नंबर ऑफ कैटाइन की लिस्ट बनाऊं तो मुझे लिस्ट बनाने से मतलब नहीं है. मुझे सिर्फ आपको एक बात सिखाना है. हाउ यू प्रेडिक्ट what type of element is present, how many number of atoms are present, and how you predict what will be the charge or loss of electron. बस आपको ये बातें सीखनी और मेरा ख्याल है आप उसे पहचान सकते हैं. How many atoms are present? One. Element is Calcium. and how many electron losses? 2. What is this? Iron. Iron. How many number of atoms? 1. One atom of iron can lose 2 electrons, and +3 charge shows one atom of iron also losing their number of electrons. This is +3. What is this? Cuprum +1. +1 means loss of 1 electron. One atom of copper can lose 1 electron, but here one atom of copper also losing their 2 electrons. वो अपने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं? 2. इसका मतलब ये सब क्या है? ट्रांजिशन. हमें कैसे पता चलेगा कहां पर ये +1 है और कहां पर +2 है? इसको लिखने का तरीका, अगर कॉपर ऐसे लिखा गया है 2, इसका मतलब आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ड्यूरिंग रिएक्शन कॉपर इज 2 यानी +2 चार्ज. इफ आयरन N3 is present, what is this? देन आप उसे बड़ी आसानी से पहचान लेते हैं कि आयरन के ऊपर कौन सा चार्ज है? 3. ये सारी बातें आगे चलकर आयोनिक इक्वेशन में बहुत तंग करती हैं. हमें पता ही नहीं चलता, हमारे सामने हम उसकी आइडेंटिफिकेशन सीखते हैं और सीख रहे हैं. चलिए अब जरा बात करते हैं एनाइंस, द लिस्ट ऑफ एनाइंस.
लिस्ट ऑफ एनाइंस में जरा ध्यान दीजिएगा क्योंकि कैटेगरी बड़ी डिफरेंट। माइनस H minus Br minus. How many number of atoms are present? 1. OH minus. What is the name? हाइड्रोक्साइड। ये जितने भी एनाइंस होंगे इन सबके नाम के आखिर में जरा देखिएगा सिमिलैरिटी क्या। What is the similarity? Iod. Hydroxide. How many number of atoms are present? And what will be the name of this anion? Nitrate. इसका पैटर्न क्या हो गया? चेंज। अब ये क्या है? नाइट्रेट। हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट? 4. एंड द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन 1. ये मॉलिक्यूलर एनाइंस, ये एटॉमिक एनाइंस। व्हाट डू मीन बाय द मॉलिक्यूलर? When 2 or more atoms combine together, it forms a molecule. Molecular anions. चलिए एक और लेकर आते हैं। अगर मैं आपके सामने लिखूं SO4-2, इसका नाम जानते हैं? सल्फेट। और चार्ज क्या है इसके ऊपर? -2 means the one molecule of sulfate can gain 2 electrons. And how many number of atoms are present? 5. SO3-2. It is sulfate. It is sulfide. सिर्फ A की जगह क्या आ जाएगा? I. इस A की जगह क्या आएगा? I. But how many number of atoms? 4. One molecule of sulfide can gain 2 electrons. It is also the range of molecular anions. आपने देखा कैटेगरी कैसे चेंज हुई? नेम कैटेगरी भी और इनकी केमिकल बिहेवियर भी क्या हो जाएगा? चेंज। 2 के नाम और मैं आपसे चाहूंगी कि आप मेरी हेल्प करें। CO3-2 इसे जानते हैं? कार्बोनेट। क्या है ये? कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। इसका नाम क्या है? कार्बोनेट। और इसे क्या कहते हैं हम? HCO3-, hydrogen carbonate. And how many electrons gained by single molecule of hydrogen carbonate? 1. What is this? PO4-3. Phosphate. What is the name? Phosphate. ये बात इसलिए सारी बताई, अब जो हम फॉर्मूलाज बनाएं उसमें आपको नाम भी प्रेडिक्ट करना है और आप उसका फॉर्मूला भी प्रेडिक्ट कर सकते। इसका नाम क्या बताया? हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्विकली कॉपी करें। और अगर किसी को लगता है कि वो इसे अच्छे से मेमोराइज कर सकता है और उसे याद भी है, तो बेशक ना करें, लेकिन फिर कहीं गलती ना हो। हाँ जी, डन। एक बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, होपफुली आप लोग इसे कंप्लीट कर सकेंगे।
यहाँ कैटाइंस और एनाइंस वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली लिखूंगी मैं। सोडियम, कैल्शियम, अमोनियम। Anions are hydroxide, nitrate, carbonate and sulfur। क्या करना है हमें? गेम है, सोडियम को OH के साथ कंबाइन करें और प्रिडिक्ट करें व्हाट विल बी द फॉर्मूला। व्हाट विल बी द फॉर्मूला? इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस कैंसिल आउट each other, तो आपके पास फॉर्मूला क्या बनेगा? NaOH। नेक्स्ट वन, sodium is combined with the NO3. The name will be sodium nitrate, and the formula is NaNO3. Next one. तो अगर आपके पास सोडियम है प्लस और एंड कार्बोनेट है माइनस, they change their position. Now the formula will be Na2CO. Next, Na2SO। बाकी आप लोग कंप्लीट कीजिए, ट्राई कीजिए कोई। एक कैटाइन आपके पास और ऐड करूंगी क्योंकि इसके फॉर्मूलाज में बहुत गलतियां करते हैं आप। सॉरी, कंप्लीट कीजिए इसे क्विकली। सेकेंड रो, द फर्स्ट क्वेश्चन। मुझे देखना है कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर सही दे सकते। बेसिक केमिस्ट्री है। Ca+2 and OH- and the charges are shifting, then what happens? अच्छा, अब मुझे ये बताइए, यहाँ तो 1 आ जाएगा कैल्शियम के साथ, लेकिन OH के साथ आना है 2। मैं किसके साथ लगाऊं? क्या मैं ऐसे लिख दूं OH2? ना तो हाइड्रोजन के साथ 2 आ सकता है ओनली, ना ही ऑक्सीजन के साथ 2 आ सकता है। फॉर दिस पर्पस व्हेन मोर देन 1 एटम्स आर प्रेजेंट and more than 1 elements are present, then we insert the brackets parenthesis। आपके पास यहाँ पर क्या आएगा? twice। आपको ब्रैकेट इंसर्ट करना पड़ेगा। Is it clear? आपको कैसे सजेस्ट करना है कि यहाँ पे ब्रैकेट इंसर्ट करना है नहीं करना है? ये 2 किसके साथ लिखेंगे? ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन? तो क्या दोनों के साथ आना है? Then you insert the bracket। कंप्लीट कीजिए। तो हम आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्लास में टॉपिक कंटिन्यू करेंगे।